نہیں، شاعر کے لیے بھی مشکل ہے، بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، بزدل کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، کنجوس کے لیے بھی یہ زندگی مشکل ہے۔ کنجوس رکھنا بھی اپنے آپ کو ایک عذاب ہے بہت بڑا، اور سخاوت بھی ایک مشکل ہے۔ انکا قادح الی ربک قدحا، مشکل سفر ہے زندگی۔ جنتوں سے نکلنے کے بعد عظیم ایک مشکل سفر ہے، یہ آسان کاٹ نہیں۔ یہ اس دھرتی پر، اس زمین پر انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور انسان نے خود کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، یہ بیان نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اثقال نکالے گی، یہ اپنا وزن جو اس نے اندر دبویا ہوا ہے۔ دونوں تفسیریں ہیں، ایک خزانہ نکالے گی اور دوسرے اس کے بعد جو راز ہیں جو اس زمین کے پاس، جو اس زمین نے لیل و نہار دیکھے ہیں صدیوں سے، یہ زمین وہ اپنے لیل و نہار وہ بوجھ نکالے گی زمین جو اس نے دیکھا ہے۔ اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے دل بھائی۔ الا وہی القلب، اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ۔ اب اس دل کو جس میں سوچیں آتی ہیں، جس کو غصہ چڑھتا ہے، جس کو غیظ و غضب آتا ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے، جسے ماضی کی یادیں تنگ کرتی ہیں، کچھ ان کی باتیں تنگ کرتی ہیں، کچھ یادیں تنگ کرتی ہیں، اور کچھ کو وہ راتیں تنگ کرتی ہیں، یہ دل ہی کو وہ مزاج تنگ کرتا ہے، اپنا مزاج تنگ کرتا ہے، وہ مکان اور زمان تنگ کرتا ہے، اسی میں امید ٹوٹتی ہے پھر بنتی ہے، اسی دل کے اندر شک آتا ہے، یقین بھی یہی ٹوٹتا ہے، یقین کا قبرستان بھی یہی، اور یقین کا باغ بھی یہی، اسی میں علم ہے اور اسی میں ظلم ہے، اسی میں جہالت ہے، اسی میں بغاوت ہے، اسی میں بے چینی ہے، اور اسی میں حسد ہے، اسی میں تکبر ہے، اور اسی دل کے اندر ہی انسان میں عاجزی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ من کے ساتھ، الذی فی الصدور۔ تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے ساتھ، بہت سوال آیا جی، اندر کا ڈر، اندر کا ڈر، سب اندر ہے۔ دنیا اور کائنات کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا، یہی لوگ کل تھے آج ہیں۔ ہم ڈارون کی ایوولوشن کو نہیں مانتے، ہم ایوولوشن ڈیولپمنٹ میں تو مان سکتے ہیں، لیکن ہیومن سپیسیز کے لحاظ سے نہیں ہم مانتے۔ انسان کل بھی یہی تھا، ہم رجال و نحن رجال، اور یہی لوگ تھے، یہی دنیا تھی، یہی مٹیریل تھا۔ یہی دنیا جو آج باہر ہے، کچھ لوگوں کو چونٹی سے ہل جاتی تھی کچھ کی، اور یہی دنیا تھی انہی کچھ لوگوں کی جن کو بڑے بڑے وہ خود ایک پہاڑ بن گئے، خود ایک پہاڑ بن گئے، جنہیں بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہلا سکتے۔ all in the heart، یہاں ہے سب کچھ۔ وہ بلائیں ہمارے اندر کسی نے پیدا کر دی یا ہم نے خود پیدا کی؟ پہلا اصول کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، پہلا اصول اس سکون کا، ان مایوسیوں سے، ان قنوط اور یاس سے نکلنے کا۔ لا تلومونی علومو، اچھا اپنے آپ کی بھی ملامت کرنی ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا، اپنے آپ کو غلط کہنا ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا، اپنے آپ کو ٹھیک کہنا ہے تو ایروگنس میں نہیں، تکبر میں نہیں جانا۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ اصلاح شروع ہوتی ہے، یہ دو چیزوں کے ساتھ فائٹ شروع ہوتی ہے۔ کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح غلط نہیں کہنا کہ میں شک میں ہی چلا جاؤں اور وجود کا انکار کر دوں اپنے، اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک نہیں کہنا کہ میں تکبر کا دعویٰ کر دوں، وہ بھی کلیم کر دوں جو میری اوقات نہیں ہے۔ دس از دا اسٹارٹ۔ یہ جو بھی آپ کو چیز ڈپریس کر رہی ہے وہ غم ہے نا، یہ دو چیزوں پر مبنی ہے۔ بائی دا وے، مستقبل کا خوف ہوگا، تین چیزیں لے لیتے ہیں ہم، تین چیزوں پر بات ہوگی تو انسان کے من سکون کی طرف جا سکتا۔ مستقبل کا ہوگا خوف۔ حسن بھائی آپ خاموش ہیں؟ نہیں تو وہ سٹیٹس کہاں گئے جو سیوسائڈ والے پڑھنے تھے ہم؟ نہیں وہ ایسے سیوسائڈ نہیں،
मुझे कमेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा, किसी ने पूछा कि शेख साहब आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? क्यों? मैं क्या लोहे का बना जो कभी गम आए? मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। शेख साहब मैं तो पूछा इसी कि पे आपको मुझे कभी एक बड़ी गम होप आए? मिलती है, यकीन मान, कभी नहीं हो सकता। मोमिन को गम आ सकता है, मोमिन को तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो दायमी नहीं हो सकता। पूछा, क्यों? आपको कभी गम आए? चले भाई, शेख साहब ने जवाब दे दिया आज। शेख साहब ने आज जवाब दे दिया। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि भाई मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये शेख साहब ने कैसे बोल दिया? शेख साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, दायमी नहीं हो सकता, निकल जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हुआ 15 साल से डिप्रेशन में ही है भाई, 25 साल से है, इसी में जिंदगी गुजर गई। डिप्रेशन उसकी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट स्टेट का नाम है, जो आपके साथ होगा ही होगा। वो तो गम तो आप ये कि हम इंसान हैं हमें गम तो मिलेगा, वो जो उसकी कंसिस्टेंट स्टेट है, जो उसने उसको थाम के रखा हुआ है। हम यहाँ से आज के पॉडकास्ट का हाउ इज द रिस्पॉन्स? माशाल्लाह रिस्पॉन्स वेरी गुड माशाल्लाह से। लोगों को सको, संडे को ही होगा। हमें बस ये बताएं हमारे लोगों के कलेजे ठंडे हुए हैं नहीं हुए हैं? यही आवाज है ना जो अल्लाह की दी हुई गिफ्ट है। तो आज बताएं हमें क्या बोलना है इनको आज ये कहने के लिए कि घबराए नहीं, घबराए नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है। हम सब भी कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कोई घबराने की बात नहीं है। यही तूफान इतने से हो जाएंगे आपके सामने। वो कभी पता नहीं वो तकरीरों में था ना, वो जो कभी अपना आप ना देख सके वो लोगों का अक्स बन जाएंगे। अच्छा, स्टेज पर खुद ही निकलता है ये सब कुछ, पता नहीं कहाँ से निकलता है। मुझे वैसे है सवाल, पता कहाँ से? मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ लेक्चर्स वगैरह के अंदर, मैं कहता हूँ बैक टू बैक 5 इवेंट्स एक साथ निपटाते हैं। मैं आपसे वही बार बार सवाल करता हूँ कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर उसका वही आप बताते हैं कि जब इंसान अभी खुबैब भी मेरे साथ है ना, शेख खुबैब भी, वो भी यही कह रहे हैं, शेख आपके लेक्चर से पहले तक हम आपको देख रहे होते हैं, कोई तैयारी नहीं होती, निकलता का। मैं ये दिल में बहुत कुछ है। जो सबसे टफेस्ट क्राउड होती है वहाँ सबसे टफेस्ट क्राउड होता है। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टी स्पीकर्स होते हैं, उससे पहले आपकी स्पीच से पहले काफी लोग आते हैं। हाँ, वहाँ पे कंटेंट जो निकलता है वो तो अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह ही निकालता है, लेकिन पता नहीं कुछ लेकिन शेख वही बात कंटेंट वही आपकी बात हाँ, दिल से निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती। जो सवाल ये आया कि आवाज में दर्द कैसे? आवाज में दर्द तेरे आएगा जब तू उस दर्द से गुजरेगा। जब वो काटेंगे लोग तो वो दर्द निकलेगा इंसान का, वो तासीर बनेगा उससे। तो हम अब फोकस इस पे करेंगे अदिल भाई। 3 चीजें हैं जो इंसान के, लिख लें सब जिन्होंने लिखना। मैं प्राइवेट मेंटरशिप तो अब शायद नहीं, वो दौर अच्छे थे हुज़ैफा, जब हम शागिर्दी आसान थी। अब कहाँ जाऊं, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और कितने गिले हैं, कहाँ जाऊं मैं। लेकिन हम आपके साथ हैं, उठाएं कलम कागज और लिखें। नफ्स की दुनियाओं के ऊपर 1400 साल हमारे उलमा ने काम किया। ठीक है, हम साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को मानते हैं, कोई साइंस के मुनकर थोड़ी है, मुशाहिदे के मुनकर थोड़ी। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप सल्लम ने आके टूटे हुओं को ही तो उठाया था। वो अल्फाज है ना, अल्लाह ला यख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। आप सल्लम जब पहली वही के बाद आए ना, आप सल्लम थोड़े से परेशान थे उस टाइम। कायनात का इमाम देखें परेशान वहां पे बेचारे, बीवी भी हो तो खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा मेरे हबीब। क्योंकि उसके अंदर क्या है, आप लोगों का वजन उठाते हैं अपने सरों पे, हैं आप लोगों को जुड़वाते हैं, सुलह कराते हैं, कमजोर के हक में मुकदमा लड़ते हैं आप, जैसे आदमी को कैसे अल्लाह रुसवा कर सकते। तो आपके भी अल्फाज यही थे, घबराना नहीं है ऐ मेरे हबीब। और बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम 2 झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। क्या जुमले हैं ये, निकल गए। कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूं क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील।
कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया। तो जिंदगी में बहुत सी चीजें, उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, उसका एक हिस्सा मुश्किल होता है, फिर आसान होता है, फिर मुश्किल होता है, फिर आसान, इस तरह पहुंचते हैं लोग। तो पहला उसूल जमीनी हकाइक के ऊपर, जिसकी वजह से हम अटके हुए हैं, या जिसकी वजह से नहीं निकल पाया, या जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहे, या जिसकी वजह से गलत कैलकुलेशंस हैं और जिसकी वजह से रोने चल रहे हैं, इस्तिताअत। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान से देता हूँ, कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ अ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मसल। ये लेक्चर ही नहीं सुना होगा आपने कभी। कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मसल मेजरमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। में लेक्चर ही नहीं मिलेगा आपको इसके, वील ब्रिंग इट इन द मार्केट। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तूने अगर मुझसे भी ताल्लुक जोड़ना है ना, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जोड़ी। तो जब अल्लाह से ताल्लुक इस्तिताअत का की तरह मशरूत और कंडीशनड है, तो भाईजान जिंदगी की जंगें, जिंदगी के फैसले, जिंदगी की दोस्तियां और ये जो हमारे जवानों को इश्क आशिकियां चढ़ी हुई है ना भाईजान, ये इस्तिताअत और कैपेसिटी से हट के कैसे हो सकता है? हमारे अक्सर फैसले ग्राउंड के ऊपर इसलिए गलत हैं क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना कलेजा, अपने जिगर का साइज देखे बगैर पेन ले लिए लाइफ के अंदर। एंड दैट इज व्हेन द यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड बैक टू यू। जब कायनात जवाब नहीं दे पा रही होती, तो फिर हम इधर उधर ब्लेम गेम में जा रहे होते हैं या सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। अल्लाह का कायनाती उसूल है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितना वुसअत है उतना काम करना भाई। तो इस पर एक यूनिवर्सिटी में इसी टूर में मुझसे किसी ने कहा, तो शेख आर यू रिकमेंडिंग अस कि हम बड़े ख्वाब ना देखें? मैंने कहा बड़े ख्वाब देखने का नहीं कहा, ख्वाब बड़ा देख, औकात हैसियत मेजर करके स्टेप्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से। अब ग्राउंड पे बात करूंगा तो स्ट्रेटजीज की बात चलेंगी कि कौन सा मोहरा कहाँ पे यूज़ करना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे दोस्तियां करनी है, किससे सियासत कहाँ होनी है, किसको स्माइल देनी है, किसको मिजाज दिखाना है। इस्तिताअत देख के शुरू करता है आदमी ये चीज़। 80 BMI पे मसल खड़ा हुआ है और 90% आपने वेट उठा लिया है, भाईजान मसल फट जाएगा, आप नहीं कर सकें। क्योंकि याद रखें, द मोमेंट आप चलना शुरू होंगे, या मोमेंट आप ख्वाब देखेंगे, या मोमेंट आप इनिशिएटिव और डिसीजन लेंगे लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, घर गृहस्थी के मामले हो, एक औरत का प्रोफेशनल फील्ड में होना हो, या इंसान का किसी भी फील्ड में हो, आप चलेंगे ये कायनात हिल जाएगी आगे से। अभी कल से मेरे हाउस में ये डिस्कस हो रहा है कि आपको क्या लग रहा है, मैं मुखालफतों का सामना नहीं फेस करना पड़ता होगा, तनकीद नहीं होती होगी मेरे ऊपर? आपको क्या लगता है लोग मुझे जज नहीं कर रहे होंगे? अभी बैठ के मेरी गलतियां नहीं निकाली जा रही होंगी। लोगों ने थोड़ी बैठ के अक्लमंद, दानिश्वर और एक गहरी सोच के साथ सोचना होता है कि पता नहीं, अगर एक स्लिप ऑफ द टंग बैठे हुए होंगे लोग जज करने के लिए कि मारे लोगों को, कि आप कल्चरली आपसे नफरत होगी, लोगों को आइडियोलॉजिकली आपसे नफरत होगी, लोगों को स्पिरिचुअली आपसे चिड़ होगी, खारबाजी होगी, लोगों को वैसे ही आपसे इनसिक्योरिटी होगी। भाईजान एरा क्यों? लोगों को अल्लाह की तकसीम पर रजामंदी नहीं होगी कि इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इबलीस का आदम अलैहिस्सलाम से इनसिक्योर होने का लोग इस बात पर चैप्टर ही खत्म कर देते हैं कि अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि उसने इनकार कर दिया और आगे से कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। मैं कहता हूं इसके आगे का एलसीएम क्या था? व्हाई डिड ही डू? ये तो एक बिहेवियरल साइकोलॉजी का आउटबर्स्ट था। इबलीस इस लेवल, ये तो आखिरी एंड था जो बाहर निकला कि बूथी वेख अपनी जाकर। तो पंजाबियों का एक ऐसा जबरदस्त जुमला है जो ड्रीम किलर्स हैं, बर्बाद कर दे किसी को, बूथी देखिए तो अपनी, क्या जबरदस्त जुमला। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर जवाब निकाला इसका। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर 3 फिंगर्स पॉइंटिंग एट। अगर आप एक उंगली, बड़ा कल्चर, घोड़ा सीजन है पंजाबियों ने, फिर 3 उंगलियां काट के कहा, फिर बूथी देख अपनी तू जाके। हैं नेसेयर्स, ड्रीम किलर्स, ड्रीम एक्सपंजगेटर्स, मार देंगे, नजरों से मार दें आप। तो इबलीस हसद थी जो तकब्बुर में निकला। हसद के पीछे कोई एलसीएम था? इससे आगे आपने सुना, इससे ज्यादा गौर फिक्र किया? हसद इसलिए थी क्योंकि वो तकसीम पर राजी नहीं था अल्लाह की। He wasn't happy on the distribution of God's blessings. उसके पास वैसे कम नहीं था बाय द वे। आदम अलैहिस्सलाम को क्या मिलना था अभी बताया भी नहीं गया था, और अगर बताया भी गया था उसके पास कम नहीं था। हो सकता है वो सजदा इबलीस को बहुत बड़ा बना देता,
تقسیم اور اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی نہیں ہونے کے پیچھے کا ایلیمنٹ پتہ ہے کسی کو؟ when does man becomes or a creation becomes ungrateful to God and in the distribution of God's gifts and people's capabilities and potentials, جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ اور تزکیہ نہیں کرتا، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ڈسکوری. آپ نے اپنے آپ پہ لوس لیا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.